So in the previous class we were discussing about the inverse of a function. Y equals to fx is a given function and we have to find out f inverse x, and for that the requirement is that function must be 1 1 on 2, that function must be bijective function. हमने इनवर्स की डेफिनेशन देखी थी, हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स, देन सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, और उन क्वेश्चंस में साथ ही साथ हमने ये भी इंश्योर किया था दैट फंक्शन मस्ट बी 1 1 ऑन 2, तो हमने 1 1 भी प्रूव किया था, ऑन 2 भी प्रूव किया था और उसके बाद में इनवर्स फाइंड आउट किया था. So today we are going to discuss about the inverse functions, है ना, all 6 inverse trigonometric functions, sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x. So when we were discussing about the inverse function, हमने observe किया that one mapping was y equals to 4x. We have taken elements 1 2 3 4 and images corresponding to those elements were 4 8 12 16. इनवर्स की जब बात करी तो इनवर्स के केस में क्या हुआ, सिंस इट्स अ 1 1 ऑन 2 फंक्शन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के बराबर है. फॉर द इनवर्स फंक्शन व्हाट हैपेंस दैट रेंज और कोडोमेन बिकम द डोमेन फॉर द नेक्स्ट वन. जो इनवर्स फंक्शन है उसके लिए जो गिवन फंक्शन है उसका जो रेंज है या कोडोमेन है दोनों सेम है, वो नेक्स्ट वाले फंक्शन के लिए डोमेन बन जाता है, और जो गिवन फंक्शन है उसका जो डोमेन है दैट बिकम द रेंज हियर. सो y इक्वल्स टू 4x के लिए जब हमने इनवर्स फाइंड आउट किया था या हमने एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया था, तो इफ यू रिमेंबर करेक्टली इट वाज लाइक दिस 1 4 2 8 3 12 and 4 16 and that function was nothing but y equals to fx. अगर हम देखें that fx is nothing but 4x, कुछ खास बात नहीं है ना, वो 4 एलिमेंट्स थे डोमेन में, केवल सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया था. व्हेन वी से g फंक्शन या f इनवर्स फंक्शन, फॉर दैट व्हाट हैपेंस दैट नाउ 4 1 8 2 12 3 16 4 becomes the elements of the second function which is the inverse function, f inverse function, and that function which is inverse function is nothing but x by 4. We have discussed the procedure y equals to 4x और x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना and then solve. हमने ये जो यहाँ पर जो पॉइंट है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, because we are going to sketch the curves here 1 4. When we say inverse function it is 4 1. Given function में if the element is 2 8 it is 8 2, 3 12 12 3, 4 16 16 4. It's nothing but if the given function is containing some element alpha beta, in the inverse function f inverse it's going to be beta alpha. अल्फा बीटा बीटा अल्फा हो जाता है, सीधी सी बात है, इसका सीधा सा मतलब. एंड इफ यू रिमेंबर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्लास 11th, अल्फा कॉमा बीटा, इफ देयर इज अ पॉइंट देयर, अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट की इमेज बीटा कॉमा अल्फा दैट इज अबाउट द लाइन एंड दैट इज अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x. y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट इफ वी टेक द इमेज ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इट बिकम्स बीटा कॉमा अल्फा. The point is alpha comma beta. क्यों बात कर रहे हैं समझ में आएगी आपको बात. If the line is y equals to x and if we take the image of the point alpha comma beta about the line y equals to x, that's nothing but beta comma alpha. ठीक है ना. So point is if you want to sketch the curves, inverse trigonometric functions जब हम sketch करेंगे we'll be taking the help of this concept. राइट और उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है. लेकिन आपने एक और बात जो नोटिस करी, अब एक और छोटी सी बात जो सोचने वाली बात है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबके इन्वर्स हम प्लॉट करने वाले हैं. ये सारे फंक्शंस कैसे फंक्शंस हैं? ऑल दोज फंक्शंस आर 1 1 और मेनी 1 फंक्शंस. सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, all those are many one functions. If you draw a line parallel to x axis is going to cut the curve infinite number of times, infinite number of times कट करेगा. many one functions हैं, all those are periodic which are repeating after certain time interval. sin cos sec cosec 2 pi से और tan और cot pi से periodic हैं, which are repeating after certain time interval. तो repeat कर रहे हैं, तो if you draw a line parallel to x axis, that line is clearly going to cut the curve more than once, in fact infinite number of times कट करेगी. तो बात तो वहीं गड़बड़ हो जाती है.
यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ना चाह रहे हैं. इफ आई वांट टू स्केच ऑल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये तो सारे के सारे मेनी वन फंक्शन है. तो जब हमने इनवर्स की बात करी तो सबसे पहली कंडीशन, फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2. फंक्शन तो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, तभी बात बनेगी. इफ आई टॉक अबाउट साइन एक्स, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट. कब ये 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है. एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज गोइंग टू इंटरसेक्ट दैट कर्व इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम. तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ इनवर्स. कहां से इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मेनी वन फंक्शन के लिए? इट मस्ट बी 1 1 और इट मस्ट बी 1 1. इसलिए हमें इस फंक्शन को 1 1 बनाना होगा, है तो नहीं है. एंड वी विल बी रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन टू मेक इट 1 1. So first of all we'll be sketching the curve sin inverse x. Sin inverse x की बात करते हैं. But sin inverse x, as we have discussed, sin x is a many one function. So many one function है, we will be restricting the domain of that function. Sin x लेकिन ये फंक्शन तो मेनी वन है, तय बात है. इनवर्स फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है यू विल हैव टू मेक इट 1 1. आपको जो रिजल्ट्स तैयार करना पड़ते हैं, रटना पड़ते हैं, वो सारी बात समझ में आएगी आपको यहाँ पर. तो 1 1 बनाना पड़ेगा, और 1 1 बनाने के लिए वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन लाइक we'll be making, we are restricting the domain. That's the curve of, ये जो ब्लू मार्कर से बना रखा है, that's the curve of sin x. But what I have done there, मैंने उसका जो डोमेन है वो डोमेन -π/2 से π/2 रखा. और -π/2 से π/2 के करस्पॉन्डिंग क्लियरली इट इज बिकमिंग 1, -π/2 पे -1, राइट. अभी अगर इस इंटरवल में देखते हैं, इफ यू ऑब्जर्व दैट फंक्शन sin x in the interval -π/2 to +π/2, it's clearly a 1 1 function. ये 1 1 है, ठीक है. और इस 1 1 फंक्शन को now we draw the line y equals to x. और इस y equals to x में we take the image of the points या image of the curve sin x about the line y equals to x. y equals to x के अबाउट इसकी हम इमेज देखते हैं. इफ यू ऑब्जर्व हियर, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, देखो π/2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है. इफ इट इज 1 तो π/2 पे वैल्यू 1, तो व्हेन आई टेक द इनवर्स 1 पे π/2, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, π/2 पे 1 तो 1 पे π/2. दिस इज द पॉइंट विच इज द इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज कमिंग अलोंग विद y इक्वल्स टू x. जो पॉइंट y इक्वल्स टू x लाइन के ऊपर भी आ रहा है तो वो तो इनवर्स फंक्शन में भी आएगा. You have to take the image of that point about the line y equals to x. So 0 पे वैल्यू 0 हो रही है और y equals to x लाइन पर है, तो sin inverse x में भी that point will be existing there.
करस्पॉन्डिंग टू माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है किसकी, साइन एक्स की, दैट्स व्हाट, दैट्स माइनस वन. व्हेन आई टेक द इनवर्स ऑफ दैट माइनस माइनस पाई बाय टू पे माइनस वन, तो माइनस वन पर माइनस पाई बाय टू. ठीक. And likewise you can take the images of all the points. हम एक एक पॉइंट तो नहीं देखेंगे यहाँ पर. We'll be taking the images of all the points and it is going to be like this. ये जो ब्लू मार्कर से स्केच किया हुआ फंक्शन है, that is sin x, and this is the function sin inverse x. Yes, that is the inverse function. और इस इनवर्स फंक्शन के लिए अभी और समझिए, इसको मैं अलग से ड्रॉ करूं, sin inverse x. That's the function sin inverse x function. ठीक है. When I say fx, है ना, sin x की जब हम बात करते हैं तो sin x के लिए, sin x का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज नहीं है. अब की बार हमने डोमेन कम कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया. वी हैव टेकन द डोमेन फॉर दैट sin x टू एस्केप द इनवर्स. हमने इनवर्स x के लिए डोमेन क्या है इसका, ये वो सारी बातें हैं जिसके थ्रू ये इनवर्स के कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, तो इनवर्स फंक्शन कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, अदरवाइज रटना ही रहेगा. एंड दैट इज द ओनली रीजन कि यू कैन नॉट टीच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिफोर द इनवर्स फंक्शंस. पहले आपको इनवर्स का कंसेप्ट तो समझ में आए कि यार फंक्शन मस्ट बी वन वन, फंक्शन मस्ट बी ऑन टू, यू हैव टू टेक द इमेज ऑफ दैट पॉइंट अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x एंड देन यू विल बी गेटिंग अल्फा बीटा बीटा अल्फा. ठीक है ना. तो अब डोमेन क्या है, साइन एक्स का डोमेन हमने क्या किया है, साइन एक्स का डोमेन हमने रखा है यस माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, और इसकी जो रेंज है क्योंकि इट मस्ट बी वन वन ऑन टू, माइनस वन टू प्लस वन. एंड व्हेन आई से साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स के केस में ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, डोमेन क्या है, एक्स की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है, माइनस वन से वन के लिए, और रेंज क्या उसकी माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू. इफ यू रिमेंबर हमने क्या बताया था, जब इनवर्स फंक्शन की बात होती है, इफ इट इज a to b इट इज गोइंग टू बी b to a. द सेम इज हैपनिंग हियर. दैट्स द कर्व ऑफ sin इनवर्स x. so whenever we say sin इनवर्स x, the domain for that function sin इनवर्स x का जो डोमेन होगा that is माइनस वन टू वन इंक्लूसिव बोथ वैल्यूज, एंड को डोमेन या रेंज, क्योंकि वो इनवर्स फंक्शन की बात करें, दैट्स गोइंग टू बी माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू. ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात. Now look for the next curve, which is cos inverse x. So again, cos x is a periodic function with period 2 pi, having domain as all real values and range as minus 1 to 1. But cos x is clearly a periodic function with period 2 pi. It's clearly a many one function. Many one function है? No. We'll have to restrict the domain of that function.
देखो, तो ये cos x हमने बनाया, लेकिन ये तो एक मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन है तो इसका हमें डोमेन रेस्ट्रिक्ट करते हुए इसे वन वन बनाना पड़ेगा। अब वन वन बनाने के लिए हमने उस फंक्शन का डोमेन कम किया, रेस्ट्रिक्ट किया, एंड वी हैव टेकन द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, विच फंक्शन cos x, फ्रॉम 0 to pi. That's the curve of cos x, but we have just taken the branch of cos x from 0 to pi. Range of that function is -1 to 1, and now it's a 1 1 function. अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी x axis के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, it's going to intersect that curve only once. तो 0 से पाई में आपने डोमेन लिया, और अभी ये फंक्शन 1 1 है, क्योंकि अगर ये 1 1 नहीं है तो आप इन्वर्स के बारे में प्लान नहीं कर सकते, यू कैन नॉट थिंक अबाउट द इन्वर्स. To take the inverse of that function, cos inverse x बनाने के लिए we'll be plotting the line y equals to x now and alpha beta beta alpha. देखिएगा, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, 0 0 पे cos x, दैट्स द फंक्शन ऑफ cos x. 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन cos x की वैल्यू 1. व्हेन आई टेक इमेज ऑफ दैट पॉइंट अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x, तो 0 पे वैल्यू 1, तो 1 पर वैल्यू 0, ठीक है ना. This is the point which is the intersection point with y equals to x, तो f inverse x भी इस पॉइंट पे आएगा. fx और f inverse x दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, तो y equals to x लाइन के ऊपर करेंगे, है ना. इस पॉइंट की इसी लाइन में सेम पॉइंट रहेगा. अच्छा, नाउ द पॉइंट पाई बाय 2 करस्पॉन्डिंग टू पाई बाय 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x? पाई बाय 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 0, पाई बाय 2 पे 0, तो 0 के करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स आएगा 0 पे पाई बाय 2. ये 1 है, ये कहीं पाई बाय 2 यहाँ पर. एट पाई इट्स -1, पाई पे -1, सो -1 के करस्पॉन्डिंग पाई, like this. That's nothing but the cos inverse x. ठीक है, फिर से सुनिए. सबसे पहले हमने cos x का डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया, कम किया, एंड वी हैव टेकन द डोमेन फ्रॉम 0 टू पाई, 0 से पाई में. नाउ दिस ब्रांच इज क्लियरली अ 1 1 फंक्शन, ठीक है. एंड देन वी हैव प्लॉटेड द लाइन y इक्वल्स टू x एंड टेकन द इमेज ऑफ दैट पॉइंट्स, है ना. इनफैक्ट हमने तो इन सारे पॉइंट्स की इमेज ली है, वी हैव टेकन, ये तो हमने अपने कंफर्ट के हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से हमने कुछ कुछ पॉइंट्स ले लिए. एक्चुअल में तो इमेज तो पूरी कर्व की आई है y इक्वल्स टू x के अलॉन्ग. ये तो आई हैव टेकन पॉइंट, भाई 0 के करस्पॉन्डिंग 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 0, पाई बाय 2, 0, तो 0 पर पाई बाय 2, पाई की करस्पॉन्डिंग -1, तो -1 के करस्पॉन्डिंग पाई, एंड देन आई हैव टेकन या स्केच दैट कर्व, ठीक है, स्केच किया उसको. दैट द कर्व इज द cos इनवर्स x, है ना. अब cos इनवर्स x, तो जब सबसे पहले तो cos x, तो cos x के लिए हमने डोमेन कम किया, कितना किया, 0 से पाई.
व्हेन वी से cos इनवर्स x, है ना, ये तो यहाँ पे डेफिनेटली cos इनवर्स x, जस्ट ऑब्जर्व द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन -1 to 1, and observe the range 0 to pi. That is cos inverse x. It's a decreasing function, and if you think about sin inverse x, सुन लेना जरा ध्यान से. If you just observe the sin inverse x को अगर आप observe करते हैं, that's an increasing function. As value of x is increasing, sin inverse x is increasing. If you observe the cos inverse x, it's a decreasing function. As value of x is increasing, cos inverse x is decreasing. ठीक है ना? So domain for cos inverse x का domain -1 to 1, ठीक है, and range for that is going to be 0 to pi. -1 से 1 domain है, ठीक है. ये सारी चीजें इसलिए कंफर्टेबल होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं आप बहुत तेजी से लिख दोगे, फिर बहुत तेजी से आप वो सारे रिजल्ट्स आसानी से लिख पाओगे. वहाँ पर हम बात करेंगे cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल्स टू x, लेकिन cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल्स टू x फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, डायरेक्टली हम कहेंगे फॉर 0 टू पाई. cos ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू x हम कहेंगे फॉर -1 to 1. और 0 से पाई अगर नहीं है, cos ऑफ cos इनवर्स x या cos इनवर्स ऑफ cos x इज x फॉर 0 टू पाई, 0 से पाई में नहीं है तो 0 से पाई में बनाना होता है. विल बी डिस्कसिंग दैट, बट दैट इज द फंक्शन ऑफ cos इनवर्स x. अब जो डाउट शायद दिमाग में आपके आता हो, बिफोर वी थिंक अबाउट द थर्ड वन विच इज tan इनवर्स x, एक डाउट शायद आपके दिमाग में आएगा, और वो ये कि हमने दो फंक्शंस देखे, sin इनवर्स x और cos इनवर्स x, ठीक है. sin इनवर्स x के केस में sin इनवर्स x के केस में हमने डोमेन लिया या डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया -π/2 टू π/2. अब एक छोटी सी बात सोचो आप कि सर बोले सर आपने -π/2 से π/2 लिया, इवन इफ यू टेक फॉर sin इनवर्स x, है ना, बोले सर अगर π/2 से 3π/2 भी आप लेते, इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रॉम -π/2 टू +π/2, आप अगर π/2 से 3π/2 भी लेते, तब भी तो बोले सर ये फंक्शन 1 1 होता. If you take the domain of sin x from π/2 to 3π/2, then again also it is going to be a function which is a 1 1 function. बोले सर ऐसे तो कई सारी ब्रांचेस पॉसिबल है. yes, there could be infinite number of such branches जहाँ पे फंक्शन 1 1 बनेगा. Why you have taken -π/2 to π/2 only? And the same is happening for the cos x also. कि cos x में भी we have taken या restricted the domain from 0 to pi. Why not from -π to 0? Why not from pi to 2 pi? वो तो फंक्शन तो 1 1 रहेगा. द रीजन इज प्रिंसिपल वैल्यूज. वी हैव टेकन या रेस्ट्रिक्टेड द डोमेन फॉर sin इनवर्स x. व्हेन वी वांट टू प्लॉट द कर्व sin इनवर्स x, वी हैव रेस्ट्रिक्टेड द डोमेन ऑफ sin x फ्रॉम -π/2 टू π/2 बिकॉज ऑफ इट्स प्रिंसिपल वैल्यूज. प्रिंसिपल वैल्यूज के कारण, ठीक है ना. इफ यू थिंक अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दैट इज द टॉपिक देयर इन क्लास 11th. एक छोटी सी बात जो मैं यहाँ पे क्लियर करूँ मैं आपको, सुनिएगा इस बात को ध्यान से. इफ आई टू राइट sin x इक्वल्स टू हाफ, इस इक्वेशन, दैट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. इफ आई वांट टू सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, so थीटा इक्वल्स टू n pi plus -1 raised to power n alpha, ठीक है. तो sin x इक्वल्स टू हाफ, इफ दैट value is positive, that angle is going to be sin pi by 6, and you can definitely write x is equals to n pi plus
minus 1 raised to power n alpha. ठीक. But if I ask you sin x equals to minus half, if it is minus half, sin theta is becoming negative in two quadrants, third quadrant as well as fourth quadrant. sin theta पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में, बट यू हैव टेकन अब फर्स्ट और सेकंड में होता है, आपने सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं लिखा है यहाँ पर. यू हैव रिटन द एंगल ऑफ पाई बाय 6 विच इज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्यों भाई? एंड इफ आई से sin x इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो sin x इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो इट इज देयर इन द थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. यू आर गोइंग टू राइट देयर sin of minus pi by 6 there. We'll be taking the angle of the fourth quadrant. The reason is principal value is the least value. बोले सर fourth quadrant का एंगल है तो it should be 2 pi minus theta. No, we'll be taking it. ध्यान रखिएगा, whenever we measure the angle in first quadrant, second quadrant, angle measurement done in anti-clockwise manner, which is taken as positive. And if it is there in third and fourth quadrant, it is done in clockwise direction. और clockwise direction में जो measurement किया जाता है that is negative, वो angle negative होगा. The reason is प्रिंसिपल वैल्यू कभी भी पाई से एक्सीड नहीं कर सकती है. न्यूमेरिकल वैल्यू इट कैन नेवर एक्सीड बाय पाई. सो फॉर दैट इट इज गोइंग टू बी x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस पाई बाय 6. आ रही बात समझ में? दैट्स द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर. इफ आई से cos x इक्वल्स टू हाफ, जस्ट थिंक ओवर दैट. ठीक लगेगा आपको? इफ आई से cos x इक्वल्स टू हाफ, you'll be getting a clear cut idea कि कहाँ क्यों ले रहे हैं आप. भाई you can take any branch जिसको आप 1 1 बना दोगे, but why you are taking only from minus pi by 2 to pi by 2? The reason is of principal value. The reason is, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव है sin थीटा, अगर पॉजिटिव है तो एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, sin थीटा अगर नेगेटिव है तो एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. दैट्स द रीजन देयर. When I say cos theta, देखो इसको भी समझना. cos x इक्वल्स टू हाफ, आप कहेंगे सर ठीक है, इट इज गोइंग टू बी cos पाई बाय 3. एंड cos theta इक्वल्स टू cos अल्फा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. If cos x equals to minus half, what do you suggest? cos x अगर माइनस हाफ है, अब cos x अगर माइनस हाफ है तो cos थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और cos थीटा नेगेटिव होता, सॉरी cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ, और cos थीटा नेगेटिव होगा सेकंड और थर्ड में. तो कौन सा एंगल लिया जाए और क्या एंगल होगा? इट इज गोइंग टू बी दोस्तों cos, इट इज गोइंग टू बी एन एंगल ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट. एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेकंड और थर्ड दोनों की सेम रहेगी. उस केस में वी टेक द पॉजिटिव वैल्यू, और वो होता है पाई माइनस पाई बाय 3. So cos x equals to cos 2 pi by 3. X is equals to 2n pi plus minus 2 pi by 3. So angle of a second quadrant there 0 to pi. अगर वैल्यू पॉजिटिव है, सुनना इस बात को ध्यान से, तो एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो एंगल ऑफ अ सेकंड क्वाड्रेंट. दैट्स व्हाई cos x principal value is from 0 to pi, and that's why we have taken the branch of that cos x from 0 to pi, because of principal value, concept of principal value. बात समझ में आती है कि अपने को? यार ये तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया. ये आपसे कोई पूछेगा तो द रीजन इज प्रिंसिपल वैल्यू. आप समझ रहे हैं क्या बताना चाह रहा हूं मैं? वी कैन टेक एनी ब्रांच जो कि 1 1 हो सकती है, बट वी आर टेकिंग द ब्रांच विच इज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. कुछ नहीं कहा जाता है क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं कहा जाएगा. यू आर गोइंग टू टेक प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली. सो जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज. एक बार जस्ट ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ. दैट्स द कंसेप्ट ऑफ क्लास 11. देखिएगा, 3 results are there actually. sin theta equals to sin alpha, cos theta equals to cos alpha, and tan theta equals to tan alpha. ठीक है ना? sin theta equals to sin alpha, in that theta equals to n pi plus minus 1 raised to power alpha, cos theta equals to cos alpha, and tan theta equals to tan alpha.
ये जो अल्फा एंगल लिया जाता है, ये साइन अल्फा की जब बात की जाती है प्रिंसिपल वैल्यू ली जाती है, प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब, और लाइक वाइज सारे फंक्शंस को अगर आप देखें, प्रिंसिपल वैल्यू को जो बेसिक फंडे हैं इसमें, दिस इज 0, π/2, पाई, दिस इज -π/2. सबसे पहली बात, वेन एवर वी मेजर द एंगल, if it is there in first quadrant or second quadrant, if it is there in first quadrant or second quadrant, it is measured anti-clockwise, and anti-clockwise measurement is taken as positive. If angle is there in third quadrant or fourth quadrant, it is measured clockwise and it is taken as negative. ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक. अच्छा, सेकेंड वन, वेन एवर वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल वैल्यू, इट कैन नेवर एक्सीड न्यूमेरिकली बाय पाई. वो बात तो वैसे भी समझ में आती है. कैसे भैया, फर्स्ट सेकंड में होगा तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे, पाई तक बात आएगी, और थर्ड फोर्थ में होगा तो आप क्लॉकवाइज मेजर करोगे, यहीं पर बात खत्म हो जाएगी. तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैन नेवर एक्सीड बाय पाई. अब बोले सर ये न्यूमेरिकल क्यों बोल रहे हो, नेगेटिव हो सकता है ना, तो पाई से एक्सीड नहीं करेगा बस. ठीक है. तीसरी बात, प्रिंसिपल वैल्यू इज ऑलवेज द लीस्ट वैल्यू. सबसे छोटा एंगल देखना होता है उसको, लीस्ट वैल्यू ऑफ दैट एंगल इज बीन टेकन. ठीक है. अब जैसे मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा, इफ साइन थीटा इज पॉजिटिव, तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है. विच वन इज द लीस्ट वन, सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, तो क्लियरली ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट. आ रही बात समझ में आपको. इफ आई से साइन थीटा इज नेगेटिव, तो साइन थीटा नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, छोटा कौन सा होगा, क्योंकि थर्ड फोर्थ में क्लॉकवाइज मेजर करोगे, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो सबसे छोटा एंगल होगा. समझ सकते हो आप इस बात को, है ना. अगर एंगल ऐसे बनाए और एंगल ऐसे बनाए, ये एंगल और ये एंगल, तो डेफिनेटली दिस इज द लीस्ट वन, छोटा एंगल. तो एक बात ध्यान रखिएगा, whenever sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta, all those are positive. आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, दैट्स, और आप सोचते भी नहीं हो एक्चुअल में, आप करते भी वैसे ही हो. फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द प्रिंसिपल वैल्यू. sin cos tan cot sec cosec, if it is positive, angle of first quadrant, right? If sin theta is negative, if I say sin theta, that is applicable for cosec theta also. And if I say tan theta, that means it is applicable for cot theta also. So sin theta, cosec theta, and tan theta, cot theta. Sin theta, cosec theta, tan theta, cot theta. If it is equals to negative value, then angle of fourth quadrant has been taken. sin theta तो cosec theta और tan थीटा तो cot थीटा. सुनो, tan थीटा नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव कब कब होता है, सेकेंड और फोर्थ. लीस्ट कब होगा, सेकेंड और फोर्थ में. छोटा एंगल कब आएगा, फोर्थ में ना, बस. तो माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या लिया जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिया जाएगा माइनस थीटा. फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या लिया जाएगा, थीटा. बट इन केस ऑफ कॉस थीटा एंड सेक थीटा, कॉस थीटा तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बेहिचक. बट इफ इट इज नेगेटिव, देन इफ इट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में. इन दैट केस न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेकंड और थर्ड दोनों में सेम आएगी, बट यू आर गोइंग टू टेक द पॉजिटिव वन, और उस केस में इट हैज बीन टेकन एज पाई माइनस थीटा, उसको पाई माइनस थीटा लेते हैं. नाउ विल बी स्केचिंग द कर्व ऑफ tan इनवर्स x विद द हेल्प ऑफ tan x. तो tan x की हेल्प से जब मैं tan इनवर्स x स्केच करूंगा, तो अगेन tan x, इट्स अ मेनी वन फंक्शन, वन वन बनाना होगा, और वन वन बनाना होगा. अगेन आई एम गोइंग टू टेक द branch, which branch with principal values, and for that just now I had discussed tan theta negative, so fourth quadrant, tan theta positive, first quadrant. I'll be taking the interval of minus pi by 2 to plus pi by 2. I'll be taking the interval of minus pi by 2 to plus pi by 2, and then I'll be taking the image of that branch
about the line y equals to x, and I'll be getting the tan inverse x. ये जो ब्रांच है दैट्स अ ब्रांच 10x. Yes, clearly in the interval of minus pi by 2 to pi by 2, if you observe that branch, yes, it's a 1 1 function. Range of that is clearly minus infinity to plus infinity, right? Open interval minus pi by 2 to pi by 2 is the domain of that function. Which function? 10x. अब मुझे tan inverse x स्केच करना है. tan inverse x स्केच करना है तो I'll be taking the image of that with y equals to x. y equals to x के along image ले लेते हैं. y equals to x, and when we take the image, okay, that's the point there along with y on the point on the line y equals to x, तो as it is रहेगा. ध्यान से देखिएगा, when I say 10x, इनवर्स के केस में अल्फा बीटा बीटा अल्फा, इतना समझ में आ रहा है आपको? पहले समझिए. एट करस्पॉन्डिंग टू पाई बाय 2, व्हेन x टेंड्स टू पाई बाय 2, ये बातें समझ में आए तो बेस्ट रहेगा. देखो, व्हेन आई से x टेंड्स टू पाई बाय 2, तो 10x टेंड्स टू इन्फिनिटी. पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, टेंस टू लिख रहा हूं मैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो इन्फिनिटी होती नहीं, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको टेंस टू. इसका सीधा सा मतलब है व्हेन आई से tan इनवर्स x, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना? तो x विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2. ठीक है क्या? देखो, इसको ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा. ये क्लियर है कि when x tends to pi by 2, 10x tends to infinity. So when I take the image of that function, ये y equals to x बना लिया मैंने. पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे पाई बाय 2, पाई बाय 2 के करस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग पाई बाय 2. वो बात समझ में आ जाएगी आपको. यहाँ कहीं आपने पाई बाय 2 लिया, if you observe here, when x tends to minus pi by 2, 10x is tending towards minus infinity, तो माइनस पाई बाय 2 पे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस पाई बाय 2. तो ये माइनस पाई बाय 2 भी स्केच कर लेते हैं. When we sketch this function, इस फंक्शन को अगर मैं स्केच करता हूं, ठीक है, image of this branch about the line y equals to x, an image of this branch about this line y equals to x, while taking the help that when x tends to pi by 2, 10x tends to infinity, in case of inverse, है ना, if it is tending towards pi by 2, tending towards infinity, तो infinity पे it will be tending towards pi by 2. लाइक दिस. इनफैक्ट यहाँ पर मैंने ब्लू मार्कर से स्केच किया इसको, ठीक है. दैट्स द ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x. ये tan इनवर्स x की ब्रांच. आ रहा है समझ में? ध्यान से देख लें आप. पाई बाय 2 इन्फिनिटी, इफ इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ये पाई बाय 2 बनेगा.
infinity पे it would be approaching towards pi by 2, and that's the only reason that I have sketched the lines pi by 2 और minus pi by 2 पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, so that you will be getting the clear cut idea. इमेज है यार, सीधी सी बात है. tan इनवर्स x को भी अगर आप ऑब्जर्व करते हो, इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन देख रहे हो इधर, एज वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, है ना. मैं इसको सेपरेटली भी ड्रॉ करके अगर आपको दिखाता हूं, that's the function fx equals to tan inverse x. ये फंक्शन है tan इनवर्स x का, राइट. बट फॉर दैट जब मैं tan x की बात करता हूं, हमने इसका डोमेन कितना रेस्ट्रिक्ट किया है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. range of that function minus infinity to plus infinity. When we say tan inverse x, tan inverse x के केस में देख लो, ये tan inverse x डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, tan inverse x कौन सा वाला है दिख रहा है ना आपको, ये पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, तो केवल हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है. ये डोमेन ऑफ दैट फंक्शन minus infinity to plus infinity, and range of that function minus pi by 2 to plus pi by 2. That's the concept. Now we think about cot inverse x. In cot inverse x के लिए we think about cot x first, and in case of cot x we will be restricting the domain of that cot theta, and we are going to take the domain. For cos theta we have taken as 0 to pi, including 0 including pi. In case of cot theta it is going to be 0 to pi. We will be taking the branch which is 1 1 in the interval 0 to pi, open interval clearly, because minus infinity से plus infinity range होगी यहाँ पर. That's the branch of cot theta, cot x. ठीक है, clearly 1 1, बिल्कुल 1 1 है. Any line parallel to x axis is going to intersect the curve only once. 0 to pi we have taken because of its principal value. First quadrant पॉजिटिव वैल्यूज के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और नेगेटिव वैल्यूज के लिए सेकंड क्वाड्रेंट. दैट्स द रीजन देयर. To find out the inverse, to plot the inverse, we'll be taking the image of that curve about the line y equals to x. That's the line y equals to x there. Take. If you observe, when x tends to 0, cot x tends to infinity. ठीक है ना. When x tends to 0, 0 के करस्पॉन्डिंग इट इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग इट विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0. कॉट इनवर्स x का जो फंक्शन होगा. When x tends to pi, this cot x is tending towards infinity, so minus infinity. पाई पे माइनस इन्फिनिटी, so for cot inverse x, माइनस इन्फिनिटी पे पाई, माइनस इन्फिनिटी पे पाई. यहाँ पर दैट ब्रांच इज देयर, पाई बाय 2 करस्पॉन्डिंग 0, तो 0 के करस्पॉन्डिंग पाई बाय 2.
कुछ ऐसा. Because that's the intersection point with y equals to x. तो point जहाँ cot x और y equals to x और cot inverse x भी सेम पॉइंट पे मीट करेगा. पाई बाय 2 पे 0 cot x. तो cot inverse ऐसे केस में 0 पे पाई बाय 2, 0 पे इन्फिनिटी. इधर देखो जरा, इन्फिनिटी पे 0 की तरफ टेंड कर रहा है. पाई पे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग it would be approaching towards pi, and that's the curve of cot inverse x, which is a decreasing function there. Separately plot करके बताएं आपको. कुछ ऐसा. ये तो पाई बाय 2 हो गया. ठीक. Cot inverse x. Now I write the domain and range separately. For cot x, we have taken the domain of that function 0 to pi. Range is clearly all real values minus infinity to plus infinity. When it is cot inverse x, for that function just observe that range is clearly all, domain of that function is all real values. सारी real values के लिए function exist कर रहा है. Range of that function 0 से pi open interval. आपको बात समझ में आती है? हाँ सर, a to b, b to a, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर. क्यों 1 1 बनाया, क्यों डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया, ऐसा ही क्यों किया, क्यों प्रिंसिपल वैल्यू, क्या कंसेप्ट है, वो सारी बातें यहाँ समझ में आती है. Now we sketch the curve of sec inverse x. So again, to find out the sec inverse x, first we will be thinking about sec x, and then we will be restricting the domain of that sec theta or sec x, making it 1 1, and then only we will be plotting the sec inverse x. Sec x जब आप बनाते हैं, तो if you plot the, we already discussed during the graphs. Sec theta is nothing but 1 by cos theta, and when cos theta becomes 0, it becomes undefined, right? Again, if you observe sec x, but we'll have to make it that domain as 1 1. So हम उसका domain restrict करते हैं. Domain restrict करने क्योंकि उसको 1 1 बनाना है. So it is going to be like this. Pi by 2 पे it is approaching towards infinity. गड़बड़ हो जाएगा बहुत बड़ा. सेक थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? ठीक है क्या? ठीक है. पाई पे वैल्यू cos पाई माइनस 1, इट इज माइनस 1. ठीक है. पाई बाय 2 पे दिस ब्रांच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एंड दिस ब्रांच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी. मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर मैं सेक थीटा बना रहा था तो सेक थीटा में कोई बहुत परेशानी नहीं होती, आपको होना नहीं चाहिए, ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं, है ना?
लेकिन हमें तो 1 1 बनाना है, तो मेनी 1 है, और 1 1 बनाने के लिए हमने इसका डोमेन 0 से पाई में लिया है, एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पे इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, राइट। दैट्स द कर्व ऑफ नॉट सेक इनवर्स एक्स, ये तो सेक एक्स का कर्व है। But we have to sketch the curve of sec inverse x, and when we say sec inverse x, we'll be taking the help of alpha beta beta alpha. देखिएगा ध्यान से, आएगा समझ में, जरूर आएगा। देखो, this is the line y equals to x. If you observe this branch, ये sec x की ब्रांच है ना दोनों, पाई के करस्पॉन्डिंग -1, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, तो -1 पर पाई, -1 पर पाई, ठीक है। एंड दिस ब्रांच इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी व्हेन x टेंड्स टू पाई बाय 2, जब पाई बाय 2 करस्पॉन्डिंग ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, ओके। ये पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी पे पाई बाय 2, थोड़ा सा टिपिकल कार्यक्रम जरूर है, लेकिन देख सकते हैं आप, दिस ब्रांच इज हैविंग इमेज लाइक दिस, राइट। ब्लू मार्कर से जो स्केच किया, दैट्स अ कर्व ऑफ सेक एक्स, और ये जो स्केच कर रहा हूं, दैट्स अ कर्व ऑफ सेक इनवर्स एक्स। नाउ ऑब्जर्व दिस ब्रांच, 0 पे वैल्यू 1, तो 1 पर वैल्यू 0, and when x tends to pi by 2, sec x is approaching, this branch is approaching towards infinity, तो पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर पाई बाय 2, इन्फिनिटी पे पाई बाय 2, दैट्स द कर्व ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये कर्व है सेक इनवर्स एक्स, ये जो ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है, दैट्स द कर्व ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेपरेटली बना दें इसको, तो सेपरेटली अगर हम बनाते हैं सेक इनवर्स एक्स को, -1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पाई, पाई बाय 2 पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, that's the curve of sec inverse x. When we say sec x, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन क्या लिया है, डोमेन इसका देख लो जरा ध्यान से, इट इज 0 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन पाई बाय 2 टू पाई, द रेंज ऑफ दैट फंक्शन फॉर sec x, sec थीटा की बात कर रहा हूँ अभी, जो ब्लू मार्कर से स्केच किया, दैट्स माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये तो sec थीटा। व्हेन आई टॉक अबाउट द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की जब बात करता हूं, तो दिस विल बिकम द डोमेन, देख लो ना आप,
डोमेन क्या लिखोगे इसका, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में ब्रांच एग्जिस्ट कर रही है। डोमेन मतलब ये कर्व कब एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द डोमेन। ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में ब्रांच एग्जिस्ट कर रही है, देन वन से इन्फिनिटी, एंड दैट रेंज ऑफ दैट फंक्शन 0 से पाई बाय टू विथ ओपन, एंड देन पाई बाय टू टू पाई। ये समझ में आना चाहिए आपको। 0 से पाई बाय टू विथ ओपन, 0 विथ क्लोज, एंड देन पाई बाय टू से पाई पे क्लोज्ड। जस्ट थिंक अबाउट दैट कर्व। नाउ विल बी लुकिंग फॉर cosec इनवर्स x। अभी हम cosec इनवर्स x की बात कर लें। To sketch the curve of cosec inverse x, again we look for cosec x first, और cosec x को देखते हैं तो we'll be looking for the branch which is the 1 1 branch along with the principal value। principal value branch की बात करते हैं, देखिएगा। cosec x is 1 by sin x, जहाँ sin x 0 होगा, cosec x will become undefined, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। एक बार मैं पूरा फंक्शन बनाता हूँ, फिर उसको डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं हम लोग। देखो ये तो cosec x, लेकिन भैया हमें तो 1 1 की बात करना है, और 1 1 की बात करना है तो फिर कोई लोड नहीं। हमने सीखा है और बहुत ठीक ढंग से सीखा है। अभी बात करी प्रिंसिपल वैल्यू के केस में साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका सीधा सा मतलब माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, बात खत्म। सो वी आर गोइंग टू टेक द ब्रांच फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू। ये तो केल्विन ने ठीक है बता दिया आपको, दैट्स द कर्व। लेकिन we'll be taking the branch from minus pi by 2 to pi by 2 excluding 0, because at 0 it is tending towards infinity or minus infinity, right? तो सबसे पहले तो हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया प्रिंसिपल वैल्यू को ऑब्जर्व करते हुए, ठीक। ये देखिए at pi by 2 के corresponding, now this branch is there, that's a branch of cosec x। ये cosec x, ये कुछ ट्रिकी कर्व्स होते हैं। ये y इक्वल्स टू x लाइन, थोड़ा सा इसमें क्या एग्जैक्ट वैल्यूज हो तो बेहतर होता है। जैसे पाई बाय टू करस्पोंडिंग 1, तो वो पाई बाय 2 और 1 दोनों सेम उस पर दिख रहा है, बट ठीक है। सो व्हेन वी से पाई बाय 2 के करस्पोंडिंग दिस वैल्यू इज 1, तो 1 के करस्पोंडिंग इफ आई टॉक अबाउट दिस ब्रांच, पाई बाय 2 के करस्पोंडिंग 1, तो 1 के करस्पोंडिंग पाई बाय 2,
when x tends to 0, cosec x tends to infinity. This branch is tending towards infinity. This branch is tending towards minus infinity. तो 0 के करस्पॉन्डिंग है इन्फिनिटी, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे 0, विच मीन्स इन्फिनिटी पे 0, दिस पॉइंट वुड बी देयर, ये रहेगा. नाउ ऑब्जर्व दिस, माइनस पाई बाय 2 -1, ठीक है, तो -1 के करस्पॉन्डिंग ये तो है cosec x, ठीक है. इसको ब्लू से ही स्केच करता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे. So at -1, it is -1 minus pi by 2, right? This branch is approaching towards minus infinity, 0 पे, तो 0 पे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी पे 0, कुछ ऐसा कर, दैट्स द ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स x. ये cosec इनवर्स x का कर्व हो जाता है. सेपरेटली ड्रॉ कर लें इसको अगर हम, ठीक है. Like this, that's the curve of cosec inverse x. डोमेन रेंज लिख दें इसका जरा. cosec x, देखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू हमने लिया है -π/2 to 0, यूनियन 0 to π/2, रेंज ऑफ दैट फंक्शन. cosec x को देख रहे हो ब्लू मार्कर से जो बनाया है, डोमेन ये इनवर्स के कंसेप्ट a to b b to है पूरा पूरा. देखो ना cosec इनवर्स x का डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी. रेंज क्या है, रेंज है ना, ये -π/2 से 0, 0 पे ओपन और 0 से π/2, -π/2 और π/2 दोनों क्लोज्ड हैं. ये cosec इनवर्स x. नाउ वी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, their domain as well as range of those functions. And before of that एक और बात देख ले हम कि when we have written sin x, जब हमने sin x लिखा था, तो in case of sin x जो डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट किया that was, अभी एक साथ लिख रहे हैं उसको माइनस, so that you will be getting a clear cut idea. कई सारी बातें उसमें समझ में आ जाएगी आपको. -π/2 to +π/2 we have taken the domain of that function so that the function becomes a 1-1 function. ये sin x की बात कर रहा हूं मैं, in range of that is -1 to 1. when I say sin inverse x, और मैं आपको याद रखने का तरीका भी सिखाता हूं, बहुत आसानी से याद रहेगा आपको. sin inverse x, it is -1 to 1 is the domain of that function and range is clearly
माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, ए टू बी टू ए वाली बात भी वेरीफाई होती है. cos x 0 to pi range is minus 1 to 1. For cos inverse x, minus 1 to 1 becomes the domain of that function. And 0 to pi is the image there, image range. If I say 10x, it's open brackets minus pi by 2 to pi by 2 to all real values is the range of that 10x. When we say tan inverse x, all real values becomes the domain of that function. To minus pi by 2 to plus pi by 2. In case of cot x, domain we have restricted from 0 to pi, open interval, and range of that cot x is all real values. And when we say cot inverse x, all real values to sec x, domain of that function 0 to pi by 2 with open, right, and the range of that minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. And sec inverse x में that minus infinity to minus 1 union 1 to infinity becomes the domain of that function, and that range is right. And the finally, when we have taken cosec x, it is minus pi by 2 to 0 union 0 to pi by 2 range of that function minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. In case of cosec inverse x, minus infinity to minus 1 union 1 to infinity including 1 and including minus 1 becomes the domain of that function, minus pi by 2 to 0 union 0 to pi by 2 becomes the range of that function. अब ये हमेशा हमें प्रिपेयर होना चाहिए. हम जब इन्वर्स की बात करेंगे तो इन्वर्स के केस में ये साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, ऑब्जर्व करें जरा ऐसे. जब इन्वर्स फंक्शन के डोमेन याद क्या करना, रटना क्या, उसमें कुछ भी खास नहीं है. व्हेन वी से डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शंस आर नथिंग बट द range of sin x is minus 1 to 1 is becoming the domain for sin inverse x. Range of cos x is minus 1 to 1 is becoming the domain here. Tan x की range all real values is becoming the domain for tan inverse x. Cot x की range all real values is becoming the domain. क्या रटना उसमें? In case of sec inverse x, cosec inverse x, sec theta और cosec theta की range क्या होती है? Minus infinity to minus 1 union 1 to infinity is becoming the domain for that function. आ रहा है समझ में? And when we talk about the range of those functions, sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, जिस डोमेन में हमने फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया था, sin cos tan cot को, that is becoming the range for those functions. तो sin inverse x minus 1 से 1 जब डोमेन है including both values, range of that function is minus pi by 2 to plus pi by 2. और इसीलिए मैंने इसको दोनों को again I have written, right? तो बहुत आसानी से याद रहता है कि for what values of x that function is defined and what is the range of that function. लेकिन हाँ एक बात है कि ये रटा हुआ होना चाहिए आपको, इसमें कोई second thought नहीं. When we say sec inverse x, तो sec inverse x the domain is this is the range there. ठीक है.
इसको तो नोट कर लीजिए. During the discussion of inverse function, we have discussed that f is a function from a to b, which is y equals to f of x, right? Clearly x is an element of that domain. So f is a to b, y is equals to f of x. Under this mapping f, there is a function which is a 1 1 on 2 function. Then only we can think of a next function, g function, which is from b to a, and for that function g of y is equals to x, and that g function is nothing but f inverse, and that is f inverse y is equals to x. कुछ रिजल्ट्स हम कंक्लूड करेंगे हम यहाँ से जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे, that y is equals to f of x. If I keep y here, I will be getting f inverse of, in place of y, fx is clearly equal to fx, right? f inverse of fx is equals to x, but for what values of x? x की किन वैल्यूज के लिए? जितने इंटरवल में आपने फंक्शन को 1 1 बनाया था उतने की बात करोगे ना आप. सो f inverse y equals to x, so that y has been kept as f of x, so f inverse of fx will become x. ये y को रखा आपने fx, but f inverse of fx will become x when x is an element of a, right? And similarly, this x is there. If I keep x here, y is equals to f of, ये x को रिप्लेस किया मैंने, f of f inverse y, or you can say f of f inverse x will become x. लेकिन ये x कब बनेगा? तो f inverse y is equals to x, और इस y को रखा मैंने f of x, ये तो एक रिजल्ट हो गया, ठीक. Then this x I have kept here, तो y is equals to f of f inverse y, या y equals to f of f inverse y कहूँ, या f of f inverse x is equals to x. For what values of x? X must be an element of what? b. तभी तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा. दैट्स अ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है. f इनवर्स ऑफ fx इज इक्वल्स टू x, फॉर x इज एन एलिमेंट ऑफ a. आप कहेंगे सर ये डिस्कशन हो चुका है, आप फिर से बता रहे हैं. हाँ ठीक बात है, देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा रिजल्ट्स, हम डायरेक्ट बात कर पाएंगे. देखो f inverse of fx is equals to x when x is an element of a. I can write using that sin inverse of sin x will become x. ये अगेन फिर से लिस्ट बनाने के पीछे रीजन था. sin inverse of sin x will become x. लेकिन कब? for what values of x? x की किन वैल्यूज के लिए? ये f inverse of fx, ये sin x. We have restricted the domain of that sin x. sin x का डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट किया था -π/2 से π/2. तो sin इनवर्स ऑफ sin x इज इक्वल्स टू x इज नॉट ऑलवेज x. ये हमेशा x नहीं होता है, ये x केवल तभी होता है x इज एन एलिमेंट ऑफ -π/2 टू +π/2. अगर ये -π/2 से π/2 के इंटरवल में है तब तो आप कहोगे x, और अगर नहीं है तो यू हैव टू reduce it या convert it in the interval of -π/2 to π/2. And likewise sin of sin inverse x, that is also becoming x. लेकिन कब? sin of sin inverse x will become x, and the domain of that sin inverse x, if you just observe here b to a वाली बात लिखी है, when x is an element of -1 to 1, not always -1 to 1. कैसे आ गया? यूजिंग दिस फैक्ट ओनली. sin इनवर्स ऑफ sin x इज इक्वल्स टू x व्हेन x इज एन एलिमेंट ऑफ -π/2 टू +π/2. आती बात समझ में, है ना? छोटा सा एग्जांपल दूं, हमने काफी सारी बातें हमें करना है इस बारे में. तो इफ इट इज लाइक sin इनवर्स ऑफ sin π/4, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज. इफ इट इज sin इनवर्स ऑफ sin π/4, तो sin इनवर्स ऑफ sin π/4, यहाँ से एक्चुअल में इनवर्स की बात है, लेकिन हमने इतना डिस्कशन किया, ग्राफ्स स्केच किए, कंफर्टेबल आपको करने के लिए पता भी होना चाहिए. sin इनवर्स ऑफ sin π/4
आप सबसे पहले सोचोगे ओके साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है इन द इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू पाई बाय 4. इज इट देयर इन द इंटरवल ऑफ माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू? यस. इफ इट इज देयर इन द इंटरवल, बिना कोई डाउट के उसको पाई बाय 4 रख दीजिए, because it is there in the interval of minus pi by 2 to plus pi by 2. And at the same time, if I write sin inverse of sin 3 pi by 4, बोर्ड पे देखिएगा इस बात को, sin inverse of sin 3 pi by 4, I am not going to write it 3 pi by 4. पहले मैं देखूंगा क्या 3 pi by 4 minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में है. If it is there in the interval of minus pi by 2 to pi by 2, then it's fine, 3 pi by 4 लिख दीजिएगा. लेकिन नहीं है, 3 pi by 4 is more than pi by 2. 3 pi by 4 is clearly more than pi by 2. I cannot write it 3 pi by 4. अगर लिखते हो तो गलत होगा. यही तो इनवर्स के कंसेप्ट है, समझिएगा इस बात को. It is going to be sin inverse of sin, ये 1 मार्क में बोर्ड में आता है यूजुअली, pi minus pi by 4. It is going to be sin inverse of sin pi minus pi by 4. Sin 180 minus theta is sin theta. So sin inverse of sin pi by 4. और अभी आप साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 4 को जरूर लिखिएगा पाई बाय 4. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 4 इज नॉट 3 पाई बाय 4, इट इज एक्चुअली पाई बाय 4. आ रही बात समझ में? दैट्स द रीजन देयर. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाय 2. लाइकवाइज इफ आई से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, यही तो रिजल्ट है. और अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो मजा आ जाता है. cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल्स टू x when x इज एन एलिमेंट ऑफ 0 to pi. सुन लो जरा, ये 6 की लिस्ट देख लें हम. फर्स्ट वन, sin इनवर्स ऑफ sin x इज इक्वल्स टू x when x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाय 2 to प्लस पाई बाय 2. cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल्स टू x when x इज एन एलिमेंट ऑफ 0 to pi. tan inverse of x, tan inverse of tan x will become x for minus pi by 2 to pi by 2 open bracket. Cot inverse of cot x will become x 0 to pi open brackets. आ रहा है समझ में? sec inverse of sec x will become x for 0 to pi excluding pi by 2. And likewise cosec inverse of cosec x will become x for minus pi by 2 to pi by 2 excluding 0. ये रिजल्ट हो गए. कंसेप्ट क्लियर है तो आप कहाँ देर लगेगी आपको. And the same is as for sin of sin inverse x is equals to x. So sin of sin inverse x is equals to x for minus 1 to 1 including. Cos of cos inverse x is equals to x for minus 1 to 1. Tan of tan inverse x always all real values. Cot of cot inverse x always for all real values. And sec of sec inverse x will become x as well as cosec of cosec inverse x will become x for minus infinity to minus 1 union 1 to like that. एज ए फॉर्मूला लिस्ट इधर भी बना लिया जाए. वॉट एवर वी हैव रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, जो मैंने बोला था उसको लिख दिया जाए फिर से. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इट विल बिकम एक्स व्हेन एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये बिल्कुल तैयार होना चाहिए, इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं. द रीजन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वी हैव डिस्कस्ड. x is an element of 0 to pi. Tan inverse of tan x is x. X is an element of minus pi by 2 to plus pi by 2 open brackets. Cot inverse of cot x is x. X is an element of 0 to pi. Sec inverse of sec x is x. X is an element of जीरो टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2 बोल सकते हैं आप इसको, राइट. And finally cosec inverse of cosec x is equals to x
minus pi by 2 to plus pi by 2 excluding 0. राइट याद रखने के लिए एक और बात समझा दूं मैं आपको. ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द आइडिया कि हाउ टू राइट द डोमेन. इफ यू जस्ट ऑब्जर्व ये थ्री फंक्शंस बोर्ड पे देखिएगा और ये काफी रिलेवेंट भी होगा आगे तक के डिस्कशन में. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, tan inverse of tan x equals to x or cosec inverse of cosec x equals to x. Yeah, just if you think about the domain, just previously we have written the domain of all the functions, all six trigonometric function, inverse trigonometric function, and we have written the domain. ठीक है ना. डोमेन एज वेल एज रेंज लिखा हमने. साइन इनवर्स, tan इनवर्स और सेक इनवर्स जस्ट ऑब्जर्व करें. सॉरी, साइन इनवर्स, tan inverse or cosec inverse. In case of sin inverse, it is minus pi by 2 to plus pi by 2, including both values. In case of tan inverse, it is again minus pi by 2 to plus pi by 2, but excluding those two values. Or in case of cosec inverse, again it is from minus pi by 2 to plus pi by 2, but excluding 0. ये बात समझ में आती है क्या अपने को? In case of cos inverse, just if you think about the जो हमने डोमेन और रेंज लिखा है, तो cos inverse, range of that cos inverse was 0 to pi. cot inverse x के केस में भी 0 to pi but x open, और sec inverse के केस में भी 0 से pi, 0 और pi दोनों closed excluding pi by 2. तो these three functions, sin inverse x, tan inverse x and cosec inverse x, one category. First quadrant, fourth quadrant. Cos inverse x, cot inverse x and sec inverse x, second category. First quadrant, second quadrant, 0 से pi. थोड़ा सा ऑब्जर्व करें. Right? As we have written these results, likewise I have discussed that the results could be, केवल एक या दो रिजल्ट लिखता हूं. जैसे मैंने लिखा था previously, sin of sin inverse x will become x for minus 1 to 1. Cos of cos inverse x will become x for minus 1 to 1. Tan of tan inverse x all real values. All real values. Right?